Dear parents and dear students, welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 6th, Subject Science Chemistry, Chapter number 6 and Lecture number 9. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then may you clear to related teacher. आपको इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी डाउट हो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। जैसे स्कूल ओपन होगा आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर से पूछ लीजिए। टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डू द एक्टिविटीज ऑफ द चैप्टर नंबर 6 एंड द फर्स्ट कैटेगरी इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड द फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन इज प्योर वाटर इज, दैट मीन्स व्हाट इज प्योर वाटर। प्योर शुद्ध पानी क्या है? एन एलिमेंट, ए कंपाउंड, a mixture, and a D, none of this. So the right answer is compound because water is a compound. Second, what percentage of water is in our body? That means how much of the percentage of the water made up our body. पानी में कितने परसेंटेज पानी होता है? बॉडी में कितने परसेंटेज पानी होता है? A 30%, 70%, C 20% and D none of this. So the right answer is 70%. Third, how much of the earth's surface is covered with the water? That means how much of the area is occupied by the water on the earth. धरती पे कितना परसेंटेज एरिया वाटर से घिरा हुआ है या वाटर प्रेजेंट है? A about 1/3, B about 1/4, C about 3/4 and the D none of this. So the right answer is C about 3/4. Fourth, the purest form of the natural water is, that means सबसे प्योर फॉर्म वाटर नेचुरली नेचर में पाए जाने वाला सबसे प्योर वाटर का फॉर्म क्या है? ए रेन वाटर, बी ग्राउंड वाटर, सी सरफेस वाटर, डी नन ऑफ दिस. सो द राइट आंसर इज ए रेन वाटर. Fifth, which of the following is the surface water? That means among the four options, which is the source of the surface water? सरफेस वाटर का चारों में से नीचे दिए गए ऑप्शन में से सोर्स क्या है? ए रिवर, लेक्स एंड रिवर्स, बी वेल्स, सी डिस्टिल वाटर, डी नन ऑफ दिस. सो द राइट आंसर इज लेक्स एंड रिवर. The ratio of the number of hydrogen atom and those of the oxygen in water is, that means in which ratio the hydrogen and the oxygen atom is present in the water. वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने एटम्स होते हैं? 2:1, 1:2, 2:2 and D none of this. So the right answer is 2:1. H2O means 2 hydrogen and 1 oxygen. 7, water at the room temperature is, that means normal temperature of an room. The water should be in which state? water किस स्टेट में होगा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे? रूम टेम्परेचर नॉर्मली 20 to 25 डिग्री सेल्सियस होता है. A solid, B liquid, C gas and D none of this. So the right answer is B liquid. D, water exists in 3 physical state, that is solid, liquid, gas and D all of this. So the right answer is all of this. वाटर तीन स्टेट में मौजूद होता है. यस, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में. The boiling water, 9th question, the boiling water on the plains is 100 degrees Celsius and in the heat it will be. That means at the plain, below the hills, the boiling water of the water is 100 degrees Celsius, but when you went to the hills, the boiling water water should be. As we have learned in the physical property that with increasing pressure, the boiling water increase, while in decreasing pressure the boiling water decrease. So जब हम हिल पे जाएंगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? A 100 डिग्री, B more than 100, C less than 100 and D none of this. So the right answer is less than 100. क्योंकि हमने फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा था प्रेशर डिक्रीज़ होने के साथ, घटने के साथ बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? डिक्रीज़ होता है. और जब हम हिली एरिया पे जाते हैं, हिल्स या माउंटेन पे जाते हैं, तो प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज. सो सही आंसर क्या होगा? 100 से भी कम होगा. 10, वाटर हैज़ अ मैक्सिमम डेंसिटी एट. दिस इज ऑल्सो वी हैव स्टडी इन द फिजिकल प्रॉपर्टी. वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा कब होती है?
A at 100 degree, B 10 degree, C 4 degree Celsius, and D none of this. So the right answer is 4 degree Celsius, which is 1 gram per centimeter cube. 11th, which of this statement is true among the four? Which one is true? नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? A, density of ice is more than the density of water. No, density of ice is less than density of water. That's why ice float on the water. वाटर की डेंसिटी आइस से ज़्यादा होती है, आइस की क्या होती है? कम. इस वजह से आइस वाटर पे फ्लोट करता है. वॉल्यूम ऑफ आइस इज मोर देन द वॉल्यूम ऑफ वाटर. यस, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द आइस इज मोर देन द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द वाटर. दैट्स वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर. डेंसिटी इज इक्वल टू मास प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम. मतलब 1 लीटर में कितना मास है उसे हम कहते हैं डेंसिटी. अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी. तो आइस की वॉल्यूम क्या है? ज़्यादा है, और इस वजह से आइस का डेंसिटी क्या है? कम. सो सेकंड वन इज राइट. सी, टेम्परेचर ऑफ आइस इज मोर देन द टेम्परेचर ऑफ वाटर. नो, यू नो वेरी वेल व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीज द वाटर चेंज इनटू आइस. जब टेम्परेचर कम होता है या डिक्रीज होता है तब जाके वाटर आइस में कन्वर्ट होता है. तो आइस का टेम्परेचर क्या होगा? वाटर से कम. 12th, water is called universal solvent. Why? Water is known as universal solvent. Why? Water को universal solvent क्यों कहते हैं? A, it can dissolve all liquid in the universe. B, it dissolve all the gases in the universe. And D, it dissolve large number of solid gas and solid, liquid and gases. So the right answer is C, because it can dissolve not only liquid, not only gases और not only solid, it can dissolve all solid, liquid and gas. क्योंकि वाटर के अंदर ना सिर्फ सॉलिड, ना सिर्फ लिक्विड या ना सिर्फ गैस डिजोल्व होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों डिजोल्व हो सकते हैं. 13, solubility of the sugar in water. That means the capacity to dissolve sugar in water. वाटर के अंदर शुगर की घुलने की क्षमता कब बढ़ेगी या कब सबसे ज़्यादा शुगर घुलेगी? ए, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. सी, इट्स नॉट अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर. डी, नन ऑफ दिस. इफ़ यू रिमेंबर, वी हैव डन in chapter number 1, that is super saturated solution, in which what we have done, we start boiling the solution and we added the sugar and the sugar get dissolved. अगर आपको याद हो तो हमने फर्स्ट चैप्टर में सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ा था. उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने एक सॉल्यूशन बनाया था, लेकिन कुछ देर बाद शुगर उसमें डिज़ोल्व होना बंद हो गई थी. तो हमने क्या किया? उस सॉल्यूशन को गर्म किया, बॉईल किया और शुगर ऐड करते गए. तो उसमें और शुगर क्या होने लग गई? डिज़ोल्व होने लग गई थी. तो हमने क्या किया? टेम्परेचर बढ़ाया था सॉल्यूशन का और सॉलिड ज़्यादा डिज़ोल्व होने लग गया था. सो द राइट आंसर इज़ शुगर ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ोल्व होगी कब? जब हम सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा देंगे. सो द राइट आंसर इज़ इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. 14, solubility of the gas in water. That means the capacity of the gas to dissolve in water. What happened to it? वाटर के अंदर गैस के घुलने की क्षमता के क्या होता है? ए, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. डी, डिक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर. सी, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. एंड डी, नन ऑफ दिस. So the right answer is decrease with increase in temperature, because when we increase the temperature, gas escape from the solution into the atmosphere and there is no more molecules of the gases. क्योंकि हम जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो गैस होती है लिक्विड या सॉल्यूशन में से वो क्या होती है? एटमॉस्फेयर में उड़ जाती है, भाप बन के, वाटर वेपर बन के. ठीक है, तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स ही नहीं हैं, इस वजह से गैस की जो सॉल्युबिलिटी है, घुलने की क्षमता है, टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है. 15, द लिक्विड दैट डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड. दैट मीन दोज लिक्विड विच कैन डिजोल्व इन वाटर. ऐसे लिक्विड जो पानी में घुल सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ए, इनसॉल्युबल लिक्विड. बी, मिसाइबल लिक्विड. सी, मिसाइबल. एंड डी, नन ऑफ दिस. सो द राइट आंसर इज मिसाइबल लिक्विड, बी. 16, when water vapor turn back into liquid, this process known as the water vapor that the gaseous form convert into liquid, this process known as
evaporation, precipitation, condensation, and D, sunshine. So the right answer is C, condensation. 17. What is evaporation? Evaporation क्या है? A, water freezes. B, water vapor melts, meets cold air and change back into liquid. That is condensation. C, first process, water freeze, is the freezing process. Second, B, water melts a cold air and change into back into liquid. That is the condensation process. And B, water gets warm and change from liquid state to the gaseous state. That means water vapor. This is the evaporation process. जब वाटर गर्म होता है तो वो लिक्विड से किस में चेंज हो जाता है? वाटर वेपर से. 18. What is the correct form for the moisture that falls to the ground from the cloud? When there is a rain, that process is known as. मतलब जब बारिश होती है क्लाउड से तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ए, कंडेंसेशन. बी, प्रेसिपिटेशन. सी, इवेपोरेशन. डी, नन ऑफ दिस. सो द राइट आंसर इज प्रेसिपिटेशन. 19. Which of the following is the reason for the depletion of water table? That means decrease in the underground water level. What is the main cause? मतलब अंडरग्राउंड वाटर लेवल का कम होना क्या मेन कारण है? ए, प्लांटिंग मोर ट्रीज. हैवी रेन. इंडस्ट्रियलाइजेशन. एंड डी, रेन वाटर. सो द राइट आंसर इज सी, इंडस्ट्रियलाइजेशन. ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री का लगना, अननेसेसरी ओवर यूज़ करना वाटर का, ये क्या कर रहा है? हमारे वाटर लेवल को डिक्रीज कर रहा है. 20. Situation in which occurrence of more rainfall than the normal level water distribution is. That means occurrence of more water than the normal. ज़रूरत से ज़्यादा पानी का वाटर लेवल में इंक्रीज हो जाना चारों तरफ, उसे हम क्या कहते हैं? ड्रॉट, मानसून विंड. C, flood. And D, earthquake. So the right answer is flood. 21. Which of the following will not help in conservation of water? Means among the four options, which is not the in the favor of the conserving water. नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन वाटर को बचाने वाला नहीं है या वाटर को स्टोर करने वाला नहीं है? ए, डीप इरिगेशन. बी, प्लांटिंग मोर ट्रीज. सी, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स. एंड D, cutting trees to check water loss through transpiration. Deep irrigation means पाइप्स एक मेथड है जो फार्मर्स एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं. पाइप्स जो होते हैं वो डायरेक्ट प्लांट के रूट तक पहुंचाए जाते हैं और उसमें वाटर फ्लो होता है. प्लांटिंग मोर ट्रीज. एंड सी, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स मीन्स जो भी वेस्ट वाटर, जो कीचड़ गंदगी जो होती है, जो केमिकल्स निकलते हैं फैक्ट्री में से, उनको पहले एक बड़ी फैक्ट्रीज में से क्या किया जाता है? क्लीन किया जाता है. उस वाटर को सब गंदगी निकालते हैं, फिर उस वाटर को हमारे नेचुरल वाटर बॉडीज़ जो समुद्र, नदी, नाले होते हैं उसमें डाला जाता है. और डी का मतलब है ट्रांसपिरेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टूड व्हाट इज ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन मीन्स द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द प्लांट्स. प्लांट के अंदर से पानी का निकलना एज अ वाटर वेपर, उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं. तो हमें क्या कर देना चाहिए? प्लांट्स को काट देना चाहिए ताकि ट्रांसपिरेशन नहीं हो. ट्रांसपिरेशन इज़ अ गुड प्रोसेस. ट्रांसपिरेशन एक अच्छा प्रोसेस है. इससे वाटर वेपर का जो लेवल है एटमॉस्फेयर में बना रहता है. तो दिस इज़ नॉट द वे टू कंजर्व वाटर, सो इट्स अ रॉन्ग. 22. Which of the following will lead to the reduction in availability of the groundwater? That means among the four options, which can lead to the decrease in level of the water, underground water. चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अंडरग्राउंड वाटर लेवल को डिक्रीज करने में हेल्पफुल है? ए, प्लांटेशन. बी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. सी, कंस्ट्रक्शन मोर लेक्स. एंड डी, बिल्डिंग कंक्रीट रोड. सो द राइट आंसर इज डी, बिल्डिंग कंक्रीट रोड. एंड अगर हम रोड्स बनाएंगे ज़मीन पे तो पानी को अंडरग्राउंड जाने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा और इस वजह से वाटर लेवल डिक्रीज हो सकता है. 23. Which of the following is not responsible for water shortage? That means the scarcity of water among the four options which never lead to the scarcity of water. पानी की कमी इन चारों ऑप्शन में से किसकी वजह से कभी नहीं हो सकती?
A. Rapid growth of industries. B. Increasing population. C. Heavy rainfall. And D. Mismanagement of the water resources. C. Heavy rainfall. पानी की वजह से तो वाटर लेवल मेंटेन रहेगा, ना कि पानी की कमी आएगी, जबकि इंडस्ट्री फैक्ट्रीज़ का बढ़ना या फिर पॉपुलेशन का बढ़ना, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो यूज़ ज़्यादा होगा, और वाटर रिसोर्सेज का मिसमैनेजमेंट मीन्स प्रॉपर तरीके से वाटर का यूज़ या कंजर्व नहीं करना। 24. Careful management of water means, that means careful use of the water means वाटर को केयर अच्छे से सावधानी से यूज़ करने का मतलब यह क्या है? मोर डेजर्टिफिकेशन, मोर डिफॉरेस्टेशन, less waste of water, and the more waste of water. So the right answer is less waste of water means पानी को कम वेस्ट करना। डेजर्टिफिकेशन मीन्स द कन्वर्ट द नॉर्मल लैंड टू द डेजर्ट, मतलब नॉर्मल जो लैंड है हमारी उसको डेजर्ट में कन्वर्ट करना, क्योंकि वहाँ पे वो जो ज़मीन होती है वो क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है बहुत सारे कारणों की वजह से, तो वो धीरे धीरे डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट, व्हाट इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड अ टेस्टलेस लिक्विड? Second, water is a substance made up of oxygen and hydrogen. Third, the different water source of the earth get the water supply from the rainwater. The rainwater is the natural supply of the all water bodies. मतलब जितने भी वाटर सोर्स है हमारे, अंडरग्राउंड सोर्स हो, रिवर्स हो, लेक्स हो, ओशंस हो, इन सबको वाटर कहाँ से मिलता है? रेन वाटर से। Fourth, the use of large amount of herbicides, pesticides and the fertilizer by the farmers in their farm leads to water pollution. That means by using the chemicals to protect the plants, and that chemicals when mixed with the water causes the water pollution. फार्मर्स के दौरान फार्मर्स के थ्रू हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र इन सब को यूज़ करना, ये सब क्या है? फर्टिलाइज़र मतलब खाद, हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड्स क्या होता है? कीड़ों को मारने की दवाइयाँ। ये जब फार्मर्स इन्हें यूज़ करता है तो ये सब कैसे ना कैसे करके वाटर के साथ मिक्स हो जाती है और वाटर पॉल्यूशन कर सकती है। फिफ्थ, डैश इज़ द मेथड टू कलेक्ट रेन वाटर ऑन द रूफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग्स। बिल्डिंग के छत पे पानी, बारिश के पानी को कलेक्ट करना, द टेक्निक इज़ नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। 6, in hydroelectric power plant dash is used for the generating electricity, that is water. पानी जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वो किससे बनती है? वाटर से। ट्रू फॉल, व्हाट इज द नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज? फॉल्स, नॉन रिन्यूएबल मीन्स विच कैन एट अ टाइम, आफ्टर सम टाइम विच कैन ओवर विद द यूज़। नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है जो समय के साथ, यूज़ करने के साथ ख़त्म हो जाएगा, पानी कभी ख़त्म नहीं होगा। या फ्रेश वाटर की कमी आ सकती है, बट पानी अर्थ के ऊपर से कभी ख़त्म नहीं होगा, कितना भी यूज़ कर लो, क्योंकि पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चलता रहता है। सो इट्स अ फॉल्स। सेकेंड, वाटर डज नॉट प्ले एनी रोल इन द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। इट्स अ फॉल्स। The seed always need water to come out from the ground. वाटर सीड के जर्मिनेशन में, सीड के उगने में, प्लांट में चेंज होने में वाटर हमेशा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है। थर्ड, वाटर कवर 90% ऑफ द अर्थ सरफेस। फॉल्स, ओनली 70%। फोर्थ, वाटर चेंज टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ट्रू, वाटर आइस में 0 डिग्री पे कन्वर्ट होता है। Fifth, water pollution occurs when a body of the water is adversely affected due to the addition of large substance amounts of material to the water. Yes, true. Water pollution means the adding of the harmful substance into the water body. जब हमारी नेचुरल वाटर बॉडी में, रिवर, सीज, लेक्स में जब हार्मफुल सब्सटेंस ऐड हो जाते हैं तब क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन। सो इट्स ट्रू। 6, rain water harvesting is a technique to check water pollution. Check means to stop. So it's a false. इसमें पूछा है जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक हम यूज़ करते हैं, इससे हम वाटर पॉल्यूशन होने से रोक सकते हैं।
CHECK check means to stop to रोकना, सो इट्स अ फॉल्स. रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्टोर और कलेक्शन के लिए है रेन वाटर का. मैच द कॉलम. ओशियंस मीन्स सॉल्टी वाटर. इन ओशियन सॉल्टी वाटर इज प्रेजेंट. वेल्स मीन्स getting the underground water. Plants means transpiration. I told you the meaning of transpiration. ट्रांसपिरेशन मतलब प्लांट्स में से वाटर का निकलना, बाहर निकलना. किस रूप में? वाटर वेपर के रूप में. दैट प्रोसेस नोन एज ट्रांसपिरेशन. लोटस इज अ एक्वेटिक प्लांट. कंजर्वेशन वाटर मीन्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द टेक्निक. So here we complete our activities of the chapter number 6. Till then, thank you and have a nice day.